हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल डी आपका। ओके, सॉरी, मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट योर ट्रेजरी मैनेजमेंट। ओके, so we already done with module A and module B. That means we have covered your around 60% of course content from BFM subject. So now, today itself, we are going to start with module C. So let's have a look about the module C. So module C, which is all about the treasury management. So these are the topic which are part of module C. Introduction to treasury management, which we will cover in today's session. Okay. Then we have treasury product, international equity and debt product, funding and regulatory aspect, then treasury risk management, derivative product, treasury and ALM, asset liability management. So these are the units and it has equal weightage. ठीक है, जैसे आपका मॉड्यूल ए और बी का था वैसे ही सी का है मार्क्स वाइज, राइट? तो मार्क्स वाइज अगर हम लोग वेटेज की बात करते हैं, सो दे हैव इक्वल वेटेज, बट प्रिपरेशन वाइज आई ऑलवेज सजेस्ट मॉड्यूल ए एंड बी आपका, जो मैक्सिमम कोर्स कंटेंट आप लोगों का कवर करते हैं। ठीक है, so let's have a look about the unit number 19, introduction to treasury management, which include basic concept of treasury, function of integrated treasury, the process of globalization, evolving role of treasury as a profit center, and organization of treasury, right? So these are the subtopics which are part of your module C unit first, or that is overall unit number 19, treasury management introduction. So whenever we talk about treasury nowadays, we it is called integrated treasury. It is an integration of money market, capital market, your derivatives, forex and others. लाइक जैसे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका बात करेंगे ट्रेजरी प्रोडक्ट के बारे में। सो वहां पे कहीं ना कहीं हम इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपका डिस्कशन करने वाले हैं। सो ट्रेजरी, जिसके आपका अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग द प्रोप्राइटरी पोजीशन, इसके अलावा इंटीग्रेशन among the different departments. So these are three key roles which are generally played by the treasury management. There are some organizations where they have a separate branch for treasury management, but if we talk about the public sector banks, they treat this particular segment as a separate department. Okay, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मोस्टली आपको एक डिपार्टमेंट की तरह ट्रेजरी मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, so the treasury function was confined of fund management, maintaining adequate cash balances to meet day-to-day requirement, deploying surplus funds generated from operations, okay, and sourcing funds to bridge occasional gap in cash flows, right? And even the management of CRR and SLR is also taken care by the Treasury Department. Like how it actually work. Let's say we have like the core function is borrowing and lending. Okay. So up जैसे suppose that if there is a gap between these two, gap can be positive side or negative side. Positive side means let's say our receivables are earlier than the payables. आपको फर्स्ट को आपका कोई एसेट मैच्योर हो रहा है एंड दैट एसेट इज प्लान फॉर द लाइबिलिटी जो आपको सपोज दैट 10th या 15 को पे करनी है। ठीक है, सो नाउ वी हैव 10 to 15 डेज इन आवर हैंड जहां पे वो पैसा हमारे पास वेकेंट है। सो व्हाट ट्रेजरी विल डू, दे विल pick that particular money, they'll invest in some short term securities or for 10 days 15 days, these kind of activities, right? तो ये आपका ओवरऑल जैसे अगर आपका जैसे समटाइम व्हाट हैपन ना, जैसे फर्स्ट को आपका लाइबिलिटी पेबल है एंड जो प्लान एसेट है उसमें कुछ डिले हो गया, ड्यू टू दैट डिले दैट पेबल विल बी दैट रिसीवेबल इज शेड्यूल फॉर नाउ, नेक्स्ट शेड्यूल इज सपोज दैट फॉर 15, तो 15 दिन का कैश अरेंजमेंट, लिक्विडिटी आपका जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है, दैट इज आल्सो डन बाय द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कभी न ऐसे जो एसेट लाइबिलिटी के बीच में गैप है या फिर कहीं पे आपका ऐसा कोई सरप्लस या डेफिसिट है उसको फुलफिल करना, या कोई आर्बिट्राज ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉफिट पोजीशन आपका जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ओवरऑल आपका कैश मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
So, in the context of bank, the treasury is also responsible to meet the reserve requirements, which holding minimum CRR, cash balances, like CRR and statutory liquidity ratios together with RBI and itself. Thus, the treasury function was essentially liquidity management, and from an organizational point of view, ट्रेजरी वॉज कंसिडर्ड एज अ सर्विस सेंटर, ठीक है। तो ये आपका जो कुछ इस तरीके से जो आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। ट्रेजरी एक्टिविटी दस इनकम्पास फंड मैनेजमेंट, investments, forex operation, trading and risk management services in a multi-currency environment. So that's why it is like that means Treasury Department is dealing with multiple markets. So that's why it is known as integrated treasury, right? So we may further add the evolving role of treasury in managing balance sheet risk also in coordination with other banking departments, right? So integrated treasury आपका integration means जैसे एक चीज हमने यहाँ तक अभी तक समझी कि लाइक ट्रेजरी का जो कहीं ना कहीं जो एक्सेस है या फिर जो एक्टिविटीज आपकी उसकी होती है दैट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर मार्केट, राइट। अब जो सरप्लस या जो डेफिसिट है इट कैन बी फुलफिल थ्रू और इट कैन बी इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट और इवन इन डेरिवेटिव्स, इवन इन फॉरेक्स, ठीक है। तो ये सारे एरियाज में आपका इसका क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन बैंकिंग सेटअप रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ मनी मार्केट, securities market and forex operations. Integrated treasury in the Indian context is a direct result of reform in financial sector. The most important reform being deregulation of interest rate and partial convertibility of the rupee, which was get introduced in 1991 and 1998, ठीक है। जो नरसिम्हम कमेटी आपका था उनके रिकमेंडेशंस पे आपका ये जो चीजें की गई। तो बेसिकली पोस्ट लिबरलाइजेशन आपका 1991 के बाद ट्रेजरी का जो रोल है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है एंड डे बाय डे आपका ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो rupee is already freely convertible on current account and to a large extent also convertible on capital account owing to major relaxation allowed by RBI in the area of foreign direct investment and external commercial borrowing and ODIs, ठीक है। So FDI, ECB and ODI, overseas direct investment by Indian corporates and foreign currency operation in रेजिडेंट इंडियंस ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स का जैसे काफी ज्यादा ट्रेड आपका हुआ है, जैसे हमने जब फॉरेक्स मार्केट पढ़ा भी था, तो नाउ डेज इंडिविजुअल इवन कॉर्पोरेट एज वेल एज इंडिविजुअल दे हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं टू फुलफिल दोज पर्टिकुलर एस्पिरेशंस और टू प्रोवाइड देम सर्विसेज वी विल बी रिक्वायर्ड अ proper structured treasury departments who can facilitate them or the provide the services also, right? So these are some driving forces of integrated treasury. First one is cash flow management, which is also known as fund management in a bank. Interest arbitrage, if we do have some arbitrage opportunities. Arbitrage is there is a difference between prices in two market, okay, या interest rate या others कोई भी ऐसा, ठीक है। Access to global resources, then we have corporate demand for high-end services and the final one is risk management. So basically we can summarize it कि ये आपका कुछ major areas हैं जहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। इट कैन बी फंड मैनेजमेंट और इवन एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फॉर द बैंक इटसेल्फ, ठीक है। और जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपका उनको फैसिलिटेट करना, कॉर्पोरेट डिमांड सर्विसेज जो आपकी हैं एंड अलॉन्ग विद दिस रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। सो फंक्शंस तो इस तरीके से आपका मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट कोर फंक्शंस CRR एंड SLR, ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, efficient merchant services which include foreign exchange, forex and as well as advisory services, right? So apart from these, optimizing profit by exploiting market opportunities in forex market, money market and securities market, debt, equity and credit derivatives. Risk management आपका, managing the market risk of the bank or entity, assisting bank management in asset liability, ठीक है, और which is directly related to your liquidity management also. So these are some core functions which are generally performed by the
ट्रेजरी डिपार्टमेंट और ट्रेजरी ब्रांच इन आवर बैंक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनका इंटीग्रेशन से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ अगर हम ये जो जितने भी फंक्शंस हैं इनको ब्रॉडर वे में आपका कैटेगराइज करते हैं, so it can be categorized among three parts. First one is liquidity management, second one is proprietary position and third one is risk management. तो बैंक के जो मतलब ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जो ओवरऑल फंक्शंस है जितने भी हमने पास्ट में डिस्कशन किया, तो अगर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो इट कैन बी फर्दर कैटेगराइज अमंग थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट, दैट एएलएम मैनेजमेंट बेसिकली. प्रोपराइटरी पोजीशन, तो जैसे बैंक की खुद की आपके पोजीशन होती है, जैसे करेंसीज में है या किसी इक्विटी में है, तो अगर वहां पे कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी है या कोई भी ऐसा लाइक एडवर्स मार्केट कंडीशंस है, तो उसमें बैंक को प्रोटेक्ट करना है ऑल, ठीक है. एंड रिस्क मैनेजमेंट इज मेजरली इट इज रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, जिसमें आपका डेरिवेटिव्स या अदर्स इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. So liquidity management, treasury is responsible for managing short-term funds across currencies and also manage reserve requirement which includes CRR and SLR, right? So liquidity management, the very first one thing. And एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी मैनेजमेंट की अगर हम लोग या ट्रेजरी के जो पोजीशन की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इन शॉर्ट टर्म, ठीक है. वैसे जैसे कोई भी आपका एएलएम गैप है या कोई आर्बिट्राज ऑप्शन है, सो दैट पोजीशन विल बी ऑलवेज इन शॉर्ट टर्म, ठीक है. मतलब आपको वो देखने के लिए मिलेगा 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, आपका मैक्सिमम अप टू लेस देन 1 ईयर. इस तरीके से पोजीशन आपको इनके देखने के लिए मिलेंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट के टुवर्ड हो या फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की तरफ हो, ठीक है. Proprietary position, treasury may trade in currencies, securities and other financial instrument including derivatives in order to contribute to bank profit as well, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली जो भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज एंड जो सरप्लस हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए. थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. सो ट्रेजरी विल एड मैनेजमेंट इन ब्रिजिंग एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, will provide a derivative tool to manage risk in client business and as well as also manage risk inherent in its own proprietary position. Like जैसे अगर हमारे पास let's say we have a portfolio of 100 crore rupees and there are some मार्केट कंडीशंस जो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट डालने वाले हैं, जिसकी वजह से बैंक का लॉस हो सकता है. सो फॉर दैट वन, टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो फॉर अ टाइम बीइंग, ट्रेजरी विल एंटर इनटू सम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो जिससे जो डाउनसाइड पोटेंशियल्स है उनको आपका रोका जा सके. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर जनरली डन बाय द ट्रेजरी इटसेल्फ. तो ये तीन आपका मेजर एरियाज जिनमें हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, ठीक है. सो नाउ ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू इंक्रीज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेजरी. तो जैसे हमने अभी बात भी किया, हर कोई आपका वो ऑर्गेनाइजेशन तो पहले से काफी ज्यादा था, अब इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट्स भी काफी ज्यादा, लाइक दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल मार्केट. ऑर्गेनाइजेशन आपका एक्सपोर्ट्स है या फिर ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर एफडीआई एफआईआईज का आपका इंडिया में आना है. तो ये सारी चीजें जिन्होंने मतलब ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से ट्रेजरी का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है. सो globalization refer to interaction between domestic and global market and may generally defined as the process of integrating domestic market with global market characterized by the free capital flow and minimum regulatory interventions, ठीक है. So minimum regulatory interventions के लिए जैसे हमने IFSCA की स्थापना करी, ठीक है. So that is a kind of universal regulator which has characteristics of all the regulators या रूल्स रेगुलेशन लाइक आरबीआई, सेबी, इरडा, आपका पीएफआरडी एंड ऑल, राइट. तो उनका एक कॉम्बिनेशन, तो वहां पे ये कहीं ना कहीं लाइक जैसे अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, सो दे नीड सम फैसिलिटेटर जो गाइडलाइंस को समझने में, क्योंकि वहां की गाइडलाइंस कुछ अलग है, यहाँ की कुछ अलग है. तो वहां पे हमारे बैंक की तरफ से जो ट्रेजरी आपका है वो कहीं ना कहीं इसको आपका हैंडल कर रहा होता है, ठीक है. सो ग्लोबलाइजेशन जिसमें आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं, जैसे एफआईआई जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. So foreign investors investing in domestic equity and debt market. Direct investments की अगर हम लोग बात करते हैं, foreign companies and foreign institutional investors investing in long term funds in domestic companies, new project. आपका बेसिकली हम लोग इसको एफडीआई को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन domestic productive capacities like land, labor, capital, and they are having some direct ownership in those particular companies. It can be through joint ventures or wholly owned subsidiaries.
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ये हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो जहां पे इंडियन कंपनीज आपका दे आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उनको फैसिलिटेट करना, इश्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट इन ग्लोबल मार्केट, इट कैन बी थ्रू एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ठीक है। मर्जर इन एक्विजिशन, ठीक है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सो इन्वॉल्विंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज, पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रॉयल्टीज एंड financial services etc. So these are some core areas जहां पे ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को, या लाइक वी कैन से दीज आर द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब, व्हाई वी आर रीडिंग ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज टू प्रोवाइड दीज पर्टिकुलर सर्विसेज, लाइक अगर हमें सिस्टम में आपका कंपटीशन में बने रहना, सो वी हैव टू प्रोवाइड दीज पर्टिकुलर सर्विसेज एंड ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, usually these things are taken care by the treasury department, right? So the organization of treasury, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, so the treasury is organized either as a department of the bank, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है, और as a special branch, ठीक है। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के आधार से, दे establish as a branch as well, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां पे आपको एज अ डिपार्टमेंट की तरह ये देखने के लिए मिलेगा। अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बैंक हेड ऑफिस, ट्रेजरी विल मेंटेन एएलएम बुक, ठीक है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बुक, ठीक है। इसके अलावा अ मर्चेंट बुक एंड अ ट्रेडिंग बुक करस्पॉन्डिंग टू इट्स toll in branch balance sheet management, merchant services, trading अक्रॉस करेंसी एंड सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। जो अलग अलग एरिया जो हमने अभी तक आपका डिस्कस किया, ठीक है। ओवरऑल अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो ट्रेजरी का आपका डिवीजन है, इट इज डिवाइडेड अमंग थ्री पार्ट। वन इज फ्रंट ऑफिस which is also known as dealing room. Second is mid office, which is known for MIS management and risk management. And third one is your back office, which generally take care about the payment and settlements or reconciliation in other areas, right? So first one is dealing room, which is also known as front office, जिसका काम क्या होता है आपका trade execution, okay? So they involve in trade execution. They can handle trade on call or even one to one. दूसरा आपका बैक ऑफिस, बैक, दिस इज एक्चुअली थर्ड वन, ठीक है। सो दैट इज ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे सेटलमेंट्स, आपका रिकंसिलेशन, आपका मॉनिटरिंग इन अदर्स, दे आर पार्ट ऑफ दिस। मिड ऑफिस इज जहां पे बेसिकली आपका रिस्क मैनेजमेंट थ्रू एमआईएस आपका जो रहेगा, ठीक है। तो डीलिंग रूम जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और वो ट्रेड आपका कहीं ना कहीं जो आपके एक्सपोजर्स हैं या जो लिमिट्स उनको फॉलो करता है नहीं करता, दैट विल बी टेकन केयर बाय मिड ऑफिस। देन आपका जो पोजीशन है, जो ओपन पोजीशन है, उनको ट्रैक करना, या जो वन टू वन सेटलमेंट है वो आपका, या उनको रिकंसाइल करना, दैट इज जनरली टेकन केयर बाय द बैक ऑफिस इटसेल्फ, ठीक है। तो एक एक करके इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है इसमें, सो प्लीज पे योर अटेंशन, ठीक है। सो डीलिंग रूम, इट इज हेडेड बाय चीफ डीलर who is in charge of front office. The dealers working under him buy and sell in the market. Each dealer specialize in one of the market, or like foreign exchange, money market, securities market. Although in a integrated treasury, the dealers are generally familiar with all the market, right? Depending on the size of operation, there may be dealers dedicated to major currencies, or dealers specializing only in forward market or derivatives. It is also common to have a separate corporate dealers exclusively to attend to major corporate customers or HNI customers, merchant businesses and all. In larger bank, treasury will also have an ALM desk to exclusively manage bank ALM risk as well. तो पहला आपका डीलिंग रूम। सेकेंड वन बैक ऑफिस, ठीक है। सो बैक ऑफिस के, तो बैक ऑफिस से पहले मैं आपको थर्ड वन, ये आपका मिडिल ऑफिस के ऊपर आना चाहता हूँ, ठीक है। सो मिडिल ऑफिस आपका, ठीक है, मिडिल ऑफिस इज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रोवाइड information to the management, ठीक है। So MIS and implement risk management system. Mid office monitor exposure limit and stop losses, stop loss limit of the treasury, and report to the management on key parameter of performances. Transfer pricing mechanism may also be implemented through mid office. In a smaller bank, mid office may also function as ALM support group, as the balance sheet risk management is closely connected to treasury risk management. Okay. Third one is
Back office is responsible for verification and settlement of deals concluded by the dealers. The dealers or the deals are verified on the basis of deal slip prepared by the dealers and also from the confirmation received from the counterparties. The back office confirm the deal independently with the counterparties, bank and other institution over phone or digitally and verify the authenticity of the confirmation documents. The back office take care all related bookkeeping and सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न टू आरबीआई ऑल्सो. ठीक है, तो पूरा ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेशन या रिकंसिलेशन या आपका कंफर्मेशन वन टू वन कंफर्मेशन दैट इज जनरली टेकन केयर बाय योर बैक ऑफिस. तो तीन ऑफिस आपका फ्रंट ऑफिस which is also known as dealing room. Second one is your mid office risk management and third one is back office which generally handle आपका one to one settlements and all right. इसके अलावा एक आपका invest like some in few banks you will also see the investment department. So as stated earlier will deal with primary issues. Whenever a suitable offer is received, the department would put up an investment proposal and obtain approval at appropriate level. Minimum marketable investment being 5 crores. The investment proposal are securitized closely and are generally considered by investment committee before the sanction is obtained from the appropriate level or usually it is लाइक आपका बोर्ड लेवल आपका. ठीक है, तो जैसे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपका जैसे किसी कंपनी के अंदर या अदर्स वो रहता है वो भी. ठीक है, so this is the overall summary whatever we have gone through right now. ठीक है, तो जैसे जनरल मैनेजर और सीटीओ, ठीक है, एंड हेड ट्रेजरी. ठीक है, देन वी हैव चीफ रिस्क ऑफिसर, यहाँ पे आपका चीफ डीलर, जिसके नीचे आपका फॉरेक्स, मनी मार्केट, सिक्योरिटीज, इक्विटी. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इक्विटी इन्वेस्टमेंट, चीफ डीलर्स एंड आपका अलग अलग एरियाज के लिए. ठीक है, सो जैसे फॉर लेट्स से फॉर चीफ डीलर्स वी हैव फॉरेक्स, दिस सिक्योरिटीज, चीफ डीलर्स आपका डीलिंग रूम. ठीक है, सो MIS एंड अदर्स एंड चीफ डीलर्स आपका. ठीक है, वी हैव अकाउंटेंट. मतलब ये सब चीफ डीलर्स के अंदर आपका विच लाइक दैट एंटायर department is headed by the chief dealers and they have direct supervision from general manager or CTO or head of treasury as well, right? तो ये overall जो functions आपका जो इसको रहता है. ठीक है, so this is all about your first very first unit which is unit number 19. I hope this is clear to all of you. Right now few pointers which you need to remember for your examination. ठीक है, तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं जल्दी से. So it will help you to revise also. So following are the functions of integrated treasury. First one is meeting reserve requirement like CRR, SLR, global cash management, efficient merchant services, risk management, and assisting bank manage its ALM and fund transfer pricing also. Okay? So these are the major functions which are part of the integrated treasury nowadays, or we can directly say these are the functions which are generally performed by the treasury department. Next one, सेटलमेंट. whenever we talk about settlement, so settlement का मतलब जहां पे भी वर्ड यूज होगा तो जहां पे दो अकाउंट आपका इफेक्ट करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली बायर इज गेटिंग सिक्योरिटीज, सेम टाइम सेलर इज गेटिंग पेमेंट. ठीक है, तो सेटलमेंट हमेशा सेम टाइम बेसिस पे होता है. ठीक है, so settlement refer to a receipt and payment of amount following a deal made by a dealer, sale and purchase of foreign currency, lending, borrowing, sale or purchase of securities. सेटलमेंट इज अ की फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस. ठीक है, ये बैक ऑफिस के काम में आता है जैसे हमने समझा भी था. एज पेमेंट एंड रिसिप्ट मस्ट टेक प्लेस ऑन वैल्यू डेट. ठीक है, सो वैल्यू डेट याद है ना, फॉरेक्स में पढ़ा था हमने. ठीक है, वैल्यू डेट इज इक्वल टू सेटलमेंट डेट. ठीक है, जैसे फॉरेक्स में कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, तो वो आपका एनी डिले इन सिक्योर सेटलमेंट वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस to bank but delay in payment are considered as default by the bank, severally affecting the bank reputation also, right? Next आपका treasury is responsible for investment of foreign surplus of the bank. A bank may have foreign exchange surpluses from the following one. ठीक है, जैसे किसी हमारे नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर सरप्लस है या तो कोई भी पोजीशन में सरप्लस है, सो बैंक दे कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर वन. जो ट्रेजरी आपका वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है. अब ये सरप्लस कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है? सो प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेजरी ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेज ऑपरेशन, फॉरेक्स बोरोविंग इन ओवरसीज और डोमेस्टिक मार्केट, foreign currency and convertible rupee deposit with branches,
float fund on account of customers transactions like nose to account या आपका EEFC accounts and others, ठीक है, so exchange earner foreign currency accounts and all, right? ओके, दिस इज इट। तो पहला यूनिट आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इट इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजरी और इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। सो ट्रेजरी वर्सेस इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, ठीक है। तो पहले हम लोग खाली ट्रेजरी से लेके चलते थे, नाउ इट इज नोन एज integrated treasury. And why it is called integrated treasury? Because it has an integration of money market, capital market, forex market, securities market, ठीक है। तो जो ट्रेजरी की पोजीशन है आपका, वो बेसिकली एक मार्केट का दूसरे मार्केट में, दूसरे का तीसरे मार्केट में, इस तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज आपका मार्केट में अवेलेबल है, उन सबको वो कहीं ना कहीं आपका इनकैश कर रहा होगा, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर आप लोगों की कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, अगेन मैं वही बोलूंगा, ठीक है। सो हमारा मॉड्यूल ए एंड बी आपका कंप्लीट हो गया, अब आ रही है सी की। तो बहुत जल्दी अब सी और डी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना ए और बी में लगा था, ठीक है। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ, मेरी स्पीड के साथ चलोगे तो बहुत जल्दी आप अपना जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है या जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन वी विल कम अप विद यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज। तो अगर आप यहाँ पे लैग कर देंगे तो वहाँ पे आपका लैग होना लाजमी है, ठीक है। तो अभी से भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा आपको डबल स्पीड करनी पड़ेगी अगर जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट करें उन सबको, ठीक है दोस्तों। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दिस इज इट। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू, एंड डू शेयर योर फीडबैक इनटू द कमेंट सेक्शन, and if you like the session please do share with your friends also, right? And do subscribe my channel. So this is it, and BRBL classes are already started by Disha ma'am. So हर दिन आपको like initially she is taking 2 or 3 session in a week, but now she will also increase her session just after next week onward, right? So this is it. Bye, take care all, stay tuned for more. Thank you.